नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। कोरोना संकट में देशवासियों को प्रधानमंत्री ने बड़ा मंत्र दिया। मंत्र था आत्मनिर्भरता का। आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को दोहराया। वहीं लोकल उत्पादों की वैश्विक लोकप्रियता को लेकर खादी की मिसाल दी। लोकल के लिए वोकल रहे हर देशवासी को इन उत्पादों का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया गया। उनकी ब्रांडिंग की गई, उन पर गर्व भी होता है क्योंकि ये जो उत्पाद हैं अब ये वैश्विक यानी कि ग्लोबल बन गए हैं और आज हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। ना कि जब हम खरीदारी करते हैं तो ये देखना बहुत अहम है कि कैसे हम प्रचार प्रसार करें, बल्कि खास तौर पर ये देखना है कि क्या ये उत्पाद जो हैं वो घरेलू स्तर पर बनाए गए हैं या नहीं और खादी का कितना अहम रोल है। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है सहयोगी मेरी प्रीति। Yes, thank you, Anchal. Welcome to Atmanirbhar Bharat. Mahatma Gandhi, father of the nation, had said that through Khadi, we teach people the art of civil obedience to an institution they have built up for themselves. Khadi from those times has come a long way today when it is being recognized globally. Prime Minister Modi mentioned in his Mann Ki Baat address today how Khadi has become a fashion statement from being a symbol of simplicity over a long period of time. To talk more about it, we will be joined in by guests, and also the Prime Minister talked of how talking of vocal for local, the Prime Minister talked how locally made products have to be encouraged and how they will help in attaining Atmanirbharta or self-reliance. And to talk more about it, we will be joined in by two guests in the studio. We'll introduce our guest in a while from now, but at present we'll tell you how the Prime Minister we will tell you how the Prime Minister emphasized on the global journey of Khadi till now. The Prime Minister talked of how it being a symbol of simplicity has now come a long way and today it has become a fashion statement. The Prime Minister also advocated that Khadi, Khadi has been, is being made globally as well in other countries also, and he also quoted an example from the US where Khadi is being made. Let's hear in what the Prime Minister had to say about Khadi in his Mann Ki Baat address today. सादगी की पहचान नहीं है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। And yes, to talk more about journey of Khadi, we are joined in by two guests in the studio. We'll also talk of Prime Minister's call for vocal for local, and to talk more about it, Mr. Vinay Kumar Saxena, Chairman KVIC is joining us, and Mr. Animesh Saxena, President FISME is joining us. We welcome both of you on Atmanirbhar Bharat. When we talk of the journey of Khadi so far, Mr. Saxena, I would want you to talk more about how father of the nation, Mahatma Gandhi, had started the Khadi movement, and he started it with the intention of it being a campaign to help the poor people fight poverty and become self-reliant in those times. And from that time till today, it has come a long way and it is becoming a symbol which is popularly and globally accepted. I would want you to talk more about how has been the journey for Khadi so far. Namaskar. Namaskar, sir. Well, Gandhiji always said the soul of India lives in its villages, and the rural resurgence was crucial for India's resurgence. The core idea of this resurgence or the development remains unchanged. It is to live and let live in a simple, sustainable and mutually supportive manner, and building an everlasting harmony between the humans and the nature. This is what Khadi is all about. Khadi is undying spirit of transformation. Honorable Prime Minister today said about the transformation of Khadi. Honorable Prime Minister has mentioned about the growth of Khadi, and the growth of Khadi is just because of Honorable Prime Minister's appeal through Mann Ki Baat, through various other channels. I want to tell you one very important fact. In October this year, where this is the Corona year, in fact, and where the people are facing a lot of problems, but on 2nd of October, we crossed the sale of around 1 crore 2 lakh.
Similarly, yesterday we have crossed the sale of rupees 1 crore 5 lakh 62,000 rupees, which is very big thing. आज अगर खादी इस मुकाम पर पहुंची है तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने जितनी बार अपील की है खादी के लिए, उसके बाद सेल खादी का जो है बहुत बढ़ा है. और आज जिस वक्त वो मन की बात में लोकल फॉर वोकल की बात कह रहे थे, तो जो खादी ने इस 5 साल के पीरियड में, 6 साल के पीरियड में जो किया है, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला अडॉप्ट किया है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से बाजार में लाएं, हमारे आर्टिजन्स को किस तरीके से सपोर्ट करें. खादी जो हमारे आर्टिजन्स बहुत दूर दूर गांव में बैठे हुए बना रहे हैं, उसे कैसे पॉपुलराइज करें, उसकी इंपॉर्टेंस को बताएं. और शायद उसी की वजह से आज खादी अब जन जन तक पहुंचने लगी है. और जो अगर आपको फिगर से जोड़ूं खादी के, तो आप ये देखिए कि 2004 से 2014 में जो खादी की ग्रोथ थी वो 6% के आसपास हुआ करती थी. और 2013-14 में तो इनफैक्ट माइनस ग्रोथ थी खादी. लेकिन 2014-15 के बाद खादी की ग्रोथ ऑन एन एवरेज 30% से चल रही है जी. और हमारा टर्नओवर लास्ट ईयर 4,215 करोड़ पर पहुंच गया. बिल्कुल. ये प्रधानमंत्री की अपील का नतीजा है. बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, टर्नओवर के साथ साथ हमने एक विकास देखा है जब हम खादी का जिक्र करते हैं. और इसीलिए शायद विनय कुमार जी के कहा भी जाता है कि खादी पवित्रता का प्रतीक है, करुणा भाव उपजाती है. खादी जन जन के प्रति मानव में प्रेम भाव को उमड़ कर लेकर आती है. लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल का आह्वान किया है, उसको एक बार सुनते हैं. क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि जो घरेलू स्तर पर सामान बनाया जाता है, अगर हम ही उसके खरीदार बन के उसका प्रचार और प्रसार करेंगे तो वैश्विक पटल पर उसे अंकित करने में बेहद मदद मिलेगी. आइए सुनते हैं. बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है. आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है. हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है. जैसे एक उदाहरण है खादी का. हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं. आजकल हमारा मलखम्ब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है. अब तो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू की गई है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं. हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स हैं. मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी इनके बारे में भी जानें, इन्हें सीखें और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें. जब जीवन में बड़ी चुनौतियां नहीं होती हैं, तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ भी बाहर निकलकर नहीं आता है. इसलिए अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए. बिल्कुल, तो अपने आप को चैलेंज करना बेहद अहम है. और किस तरह से वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, उसको लगातार हर भारतवासी से आह्वान प्रधानमंत्री करते हैं कि उसे फॉलो करते रहे. हमारे साथ अनिमेष सक्सेना साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट फिस्मी हैं. अनिमेष जी, सबसे अहम ये है कि जब हम किसी भी उत्पाद को लोकली उसका प्रचार या प्रसार करते हैं, तो खाली हम देश की प्रगति या देश के आत्मनिर्भरता की बात नहीं करते, उससे जुड़ा हर व्यक्ति, उसके घर का व्यक्ति, या फिर हम कह सकते हैं वो जो वर्ग है, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होता है. क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से असीम संभावनाएं रोजगार की भी उत्पन्न होती हैं अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादों का निर्माण करते हैं. तो नमस्कार. जैसा आपने बताया कि एमएसएमई जो यूनिवर्स है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और उसमें 99% माइक्रो और स्मॉल सेक्टर में है. खादी का एक बहुत बड़ा रोल है इन यूनिट्स की सर्वाइवल का के लिए. और स्पेशली जैसे विनय जी ने भी बताया कि पिछले 5-6 सालों में जो खादी में ग्रोथ हुई है, उससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और उससे बहुत ज्यादा रोजगार और एक सेल्फ रिलायंस
और एक मतलब उनको एक ऐसा काम मिला कि जिससे वो अपने रोजगार दे सकते हैं, खुद भी अपना खुद को रोजगार मिला और अपने साथ कुछ 5, 7, 10 कर्मचारियों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील हुई है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, उससे लोगों का रुझान भी बढ़ा है कि अब वो लोकल चीजों को काफी से ज्यादा खरीद रहे हैं, स्पेशली फेस्टिवल सीजन जब आ रहा है। आप देखिए, जैसा कि उन्होंने कल की सेल के बारे में बताया कि खादी के वस्त्रों के प्रति रुझान, कॉस्मेटिक्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और दूसरे जैसे जैसे हम लोग कुछ केमिकल का दुष्प्रभाव देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, पोल्यूशन में, कि हमारे फूड में है, या हम जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हम वस्त्र हो रहे हैं, वो किस केमिकल प्रोसेस से निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये सेल्फ रोजगार के लिए और सेल्फ रिलायंस के लिए। जी बिल्कुल, आपने आत्मनिर्भरता की बात की और सेल्फ रिलायंस के लिए ये बेहद अहम है। लेकिन विनय जी, अगर हम बात कर रहे हैं लोकल को वोकल बनाने की, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, गो ग्लोबल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मेक्सिको के ओहाका शहर का जिक्र किया है, साफ तौर पर कहा कि वो शहर ही खादी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ, कई ऐसे वहां गांव हैं जहां पर बुनकर खादी के जरिए मशहूर हुए। कितना अहम आप मानते हैं? क्योंकि खादी को हमेशा भारत से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अगर वैश्विक पटल पर इसकी एक पहचान अंकित होती है, गर्व के साथ साथ असीम संभावनाएं हैं निवेश की, नौकरियों की, और हम बात करते हैं बिजनेस बढ़ाने की। अगर मैं कहूं कि खादी इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भरता, तो शायद गलत नहीं होगा जी। प्रधानमंत्री जी ने ओहाका खादी का जिक्र किया। मार्क ब्राउन जो 1981 में इंडिया आए, उसके बाद वो साबरमती आश्रम में कई समय तक रहे, और उसके बाद वो जाने के बाद उन्होंने जो है वहां पर ओहाका में खादी का काम शुरू किया। वो मुझे उसकी जानकारी है, और वो वास्तव में इतना अद्भुत काम हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इस बात का ये प्रतीक है कि खादी सिर्फ अब भारत का ही जो है वो चिन्ह नहीं बन के रह गई, दूसरी दुनिया में भी जो है लोग उसको अपनाने लगे हैं। इवन अफ्रीका में भी जो है खादी को लोग अपनाने लगे, वहां भी चरखे को चलाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसका कारण है खादी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। आप जैसा कि मालूम ही है कि खादी का कपड़ा जब बनता है, 1 मीटर खादी का कपड़ा जब बनाया जाता है तो उसमें मात्र 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही कपड़ा अगर मिल में बनता है तो 35 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो कितना डिफरेंस है, आज प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी कहा। तो अगर आपको एनवायरमेंट को बचाना है तो खादी को अपनाना। उसके साथ साथ खादी की जो सबसे बड़ी क्षमता वो ये है कि वो बहुत कम कीमत में किसी को भी सम्मान के साथ रोजगार दे सकती है। ये गांधी जी का सपना था, और गांधी जी यही चाहते थे कि गांव-गांव में चरखे चलें, लूम्स चलें, और विलेज इंडस्ट्री के माध्यम से लोग जो है रोजगार पाएं। और आज वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो गांधी जी का सपना था। आज खादी कमीशन उनके पद चिन्हों पे चल रहा है, और उसके माध्यम से जो खादी की जो हमारी स्कीम्स हैं उससे तो हम रोजगार दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ विलेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी रोजगार दे रहे हैं। और आज इसी का कारण है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और उसकी वैल्यू बढ़ी है। अभी तक लोग खादी को भूलना शुरू कर चुके थे। एक समय था आजादी के बाद, एक 5 या 6 साल का समय ऐसा था जिस वक्त तक खादी को याद किया गया, लेकिन उसके बाद लोग खादी को भूलने लगे। खादी एक तरीके से गुमनामी के अंधेरों में चली। अगर आपको मैं उसको फिगर से जोड़कर बताऊं तो शायद आप ताज्जुब करेंगे कि 1956 में जब खादी कमीशन का जन्म हुआ तो उस वक्त खादी का प्रोडक्शन जो था वो मात्र 0.42 मिलियन स्क्वायर मीटर हुआ करता था, और 2013-14 में मींस कि 58 इयर्स के बाद ये प्रोडक्शन खादी का वो 103 मिलियन स्क्वायर मीटर तक ही पहुंच सका। 58 साल में 103 मिलियन मीटर पहुंचा, लेकिन 2014-15 के बाद मात्र 6 सालों में 103 मिलियन स्क्वायर मीटर से वो 198 मिलियन स्क्वायर मीटर पहुंचा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि खादी की ग्रोथ कितनी विशाल हुई।
जी Sir, I will take this point forward to Mr. Animesh. Sir, in the beginning you talked of how more than 6 crore MSME, units are registered. A massive sector, a massive, collaboration of industry it is. But I would want you to talk more about, what does it take for a person to go vocal for local? I mean, if I or somebody, a common person goes out in the market, when at the same cost, at the same pricing, an international branded product is available, what does it take for a person to choose something locally made? How big was this challenge, to convince people to when the Prime Minister himself calls for people to be vocal for local, how important is this factor in attracting people towards the products made by the MSMEs? As the president of FISME, you tell us how, what sort of an effort does it take for people to, for the organization to attract interest and customers towards locally made products? When we had faced initially, when the people go to a show, buy something and they see internationally made product, initially the people was very strong feeling, and the consumer was the value for money. People were looking which product is giving the maximum value and how is it packaged, how it is looking. The appearance was also a big factor, and no doubt the international products were packaged much better, and people felt they are offering a better value of money. But of late, when people are, started using it, and they find now, and there was a challenge of the MSMEs to improve their packaging, and with this Prime Minister's appeal, and when the recent development, because if you live in a society, you cannot ignore the, the issues being faced by the society. And when we see the job is a big issue in India, and India has the largest youth population in the country, and job is going to be a challenge. So when people see in a totality that if we have to, become a self-reliant in the case of, providing enough jobs to our people, create enough entrepreneurship in the country, and now, as you all are aware, that the future of the job is the self-entrepreneurship. Unless we create that, we cannot depend on a government or a private sector where the automation is huge in private sector. The jobs will be created, enough jobs will be created. And now, as a FISME, what we were facing, the quality part, because what is happening, unfortunately, so far in MSME sector, the emphasis on the quality and the process was not that strong. People were following not a very standardized process to produce the goods. But now, with the competition growing up, we started training on the clusters. We chose different clusters. And now we are teaching the people that you first standardize your process or production process, so that quality is guaranteed when you are following that. With that and the consumer awareness, people feeling, we are seeing now, we are competing with any international brand now. You're seeing the cosmetics now. Vinay, as he said, he says cosmetics now. We are almost competing because whole world is going towards buying a natural product. I tell you, जैसे global का आपने भी issue किया था, Japan में people are crazy for Indian khadi, cosmetics and the fabric also, and large number of weavers especially in West Bengal are producing a very high quality fine khadi fabric, and the garments made is being sold in Japan or in United States at $300 to $400 a piece. This is the potential we have now. The only thing is we have to focus more on this quality part and the process control. विनय जी, जिस तरह से अभी हम ये बात मानकर चलते हैं कि आपकी जो अपनी चीज़ होती है उससे आपको अपनापन होता है, और खादी के लिए ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, और इसीलिए दुनिया भर में बहुत से फैंस हैं खादी को लेकर, जिसका जिक्र हम अभी लगातार कर रहे हैं। फैशन स्टेटमेंट के रूप में खादी को एस्टैब्लिश करने में खास तौर पर हम कैसे मान सकते हैं, अगर जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो कितनी मदद कर सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर देश देश में खादी को हमको जागरूकता लेकर आनी है, प्रधानमंत्री का तो आह्वान है ही, लेकिन किस तरह से इंडस्ट्री हमारी मदद कर सकती है? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कंट्री की,
जिन्होंने खादी के साथ एग्रीमेंट किए और शायद उन्होंने खादी की इंपॉर्टेंस को जाना और इसी वजह से जो है ये एग्रीमेंट। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आज बेस्ट डेनिम खादी बना रहा है जी। डेनिम के बारे में कहा जाता था कि वो विदेशी कपड़ा है, विदेशों में बनता है और उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर हुआ करती है। लेकिन आज खादी का जो डेनिम है वो बहुत सारी विदेशी कंपनियां ले रही और जो अपने ब्रांड नेम से बेच रही। तो ये इस बात को दिखाता है कि हमारे पास क्वालिटी है और जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं, वो अपने आप प्रोडक्ट जो है पॉपुलर हो जाता है। आप दुनिया के किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले लीजिए, वो एक छोटी सी जगह से ही शुरुआत हुई उसकी, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने उसे वोकल किया, उसकी कंट्री के लोगों ने उसको पॉपुलराइज किया और वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। खादी को अगर हम कहें, खादी इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंडियननेस। हमें इसे पॉपुलराइज करने की जरूरत है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडशिप, इसे हमें पॉपुलराइज करने की जरूरत है। इट इज ए सिंबल ऑफ आर्टिजनल क्रिएटिविटी, इसे हमें पॉपुलराइज करने की जरूरत है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री स्वयं खादी पहनते हैं और उनका अटायर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसकी वजह से जो ये सारी बातें मैंने आपसे कही, जी जी जी, वो सब कुछ जो है उसका समन्वय हो जाता है। और ये जो आपने बात कही अट्रैक्टिवनेस के साथ साथ कितने क्रिएटिव हम हैं, और खास तौर पर इस कोरोना काल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने आज ये भी कहा कि कैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत अहम रोल है। कैसे हम, क्योंकि आपने कहा हम मान रहे हैं कि ग्रामीण भारत में ही असली भारत बसता है, कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ना है, उसमें खादी ने सेतु का काम किया, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनका रोल बहुत अहम है। उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया। जी हाँ, मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज खादी के बारे में इतना कहा, और ये हमारे खादी के आर्टिजन्स को के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और आज मैं समझता हूं कि हमारे सारे खादी के आर्टिजन्स बहुत खुश होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इतना समय खादी के ऊपर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो आज मास्क की भी बात करी, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके 15 दिन के अंदर खादी कमीशन ने ये डिसाइड किया कि हम अपने आर्टिजन्स को बैठा नहीं रहने देंगे और हम उन्हें किसी ना किसी काम पर लगाएंगे। और उस वक्त ये मालूम पड़ा कि मास्क ही जो है वो इस कोविड-19 को बचाने का सबसे बड़ा टूल है। हमने अपनी सारी संस्थाओं को, हमारे आर्टिजन्स को बहुत कम समय में ट्रेन कर दिया कि वो मास्क बनाने लगे, आज जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है। हमने नगरोटा, जो जम्मू कश्मीर के पास एक जगह है जहां पर मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिलीज रहती हैं, वहां पर एक सेंटर को डेवलप किया। उसके साथ साथ पूरे देश की खादी संस्थाओं में सेंटर्स को डेवलप किए और लेस देन 6 मंथ्स में हमने लगभग 18,65,000 मास्क आज तक बेचे। ये अपने में एक रिकॉर्ड है। और मास्क इसलिए नहीं बिके हैं कि वो खादी है और कोई हमारे ऊपर दया करके उसको खरीद रहा है, उसकी क्वालिटी है, वो टेस्टेड है, निट्रा से टेस्टेड है, उसके बाद लोग उससे परचेज कर रहे हैं, वो रीयूजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। आज जो मास्क M95 और उस तरीके के मास्क जो बन रहे हैं, आज उनका पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उनको डिस्पोजल कैसे किया जा सकता। लेकिन खादी के मास्क की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि आप उसको रीयूज करिए, वॉशेबल है, और उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद आप उसको अगर फेंक देते हैं तो अपने बाद खत्म हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सबसे बड़ी खासियत, वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और हैंड स्पिन, हैंड वोवन फैब्रिक से बना हुआ खादी का मास्क अपने में अद्भुत है। इसीलिए 18,65,000 मास्क का बिकना ये अपने में ही ये शो करता है।
Yes, also at this point, the awareness about these qualities which you're mentioning about khadi, or the potential of our MSME sector, the awareness about this is very important. How important is the role of social media in this? Because Amazon has introduced khadi sellers online, and on various digital platforms also, these products are available, which makes it easier for the consumers to get more knowledge and to keep them aware about how important and what quality they will be getting. I would want you to talk more about Mr. Animesh, how important is the social media factor in this? Sitting at home and you can shop, and you need not go to interiors of a particular state to get something which is specially made there. You see, what is happening, the khadi's presence was pan-India. You go to every small town, you will find a khadi showroom. Unfortunately, till few years ago, it was not a very attractive looking showroom or something like that. And it was considered the older generation, they prefer and buy the khadi product. So for reaching out to the young generation, the social media played a very, very big role. Even today, I saw, probably the first time I saw a huge ad in today's newspaper, a khadi mask, which Vinay was talking about. And it definitely made an appeal to a lot of people. So social media with this online, when the younger generation is more hooked towards buying online, rural or urban, everywhere. This Amazon taking up, Flipkart taking up, and all this social media, Instagram. And one very good thing which the Khadi KVIC did, roping in the fashion industry, especially the Fashion Design Council of India, which represents all the top designers of India. And when they started talking about khadi wearing and showcasing it, it made a huge impact through social media on the young generation. And I can vouch it. If you go to today in Delhi's the Connaught Place, their flagship store, the maximum number of people are young people. They are buying it. So social media has played a big role. I also come from a fashion industry, fashion export industry, and I have seen it. The only request I would do with Mr. Vinay, that so far Khadi did a wonderful job in approaching the fashion industry for the domestic. The same efforts, if it can be done with the apparel export industry in India, it can be one of the very good brand ambassador abroad for every market. Though the Khadi export is happening, but as a global level, if the apparel export industry is also approached and they become partner with this, it will be a huge impact and game changer for the Khadi. बिल्कुल, आपने जो गेम चेंजर की बात कही, इसी पर मैं आना चाहती हूँ। विनय जी, आपको भी शायद याद होगा कि अभी आज से कुछ साल पहले आप ही का जो सीपी वाला स्टोर है, उसमें खादी जीन्स जो थी वो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो अपने आप में बहुत अहम था। आपकी लीडरशिप में ही ये काम हुआ था। और सबसे अहम बात ये है कि लगातार हम हैं या आप हैं जो लोग जीन्स पहनते हैं, उनके लिए विदेशी ब्रांड्स ही उपलब्ध थे जिसको लेकर वो जीन्स पहना करते थे। लेकिन हमने उस दिन स्टोर में देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो खादी की इस इनॉग्रेशन की वजह से बहुत खुश थे कि अब हम खादी की जीन्स भी पहन सकते हैं, जिसमें युवा बहुत थे। कितना अहम रोल युवाओं का है। हमने देखा कई ऐसे फैशन शोज हैं जो टोटली खादी को डेडिकेट होते हैं और उसमें लोग खादी पहनते हुए रैंप वॉक करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि खादी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ KVIC on its part introduced new scientific techniques, explored untapped streams and diversified its products range. For example, आपने जो डेनिम का नाम लिया, उसके साथ साथ हम लोगों ने खादी का टाइटन के साथ एग्रीमेंट किया। हमने अपनी वॉचेस इंट्रोड्यूस की जो बहुत पॉपुलर हुई। अभी लास्ट वीक हम लोगों ने खादी फैब्रिक के बने हुए फुटवेयर लॉन्च किए। यस। और जो इतने पॉपुलर हुए कि मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय मंत्री श्री गडकरी जी ने उसको लॉन्च किया, उसके तीसरे दिन ही वो पूरा सोल्ड आउट हो गया। वो इतनी हाई क्वालिटी के बने। ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये था कि हमारा फैब्रिक जो है सिर्फ पहनने के ही काम ना आए, सिर्फ उसके एक सेट रूल्स ही नहीं हो, लेकिन उसको हम कहीं और भी यूज करें। आज जो विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो वेगन हो रहे हैं, खादी फुटवेयर को लॉन्च करने का जो पर्पस है वो ये है
कि एक तो हमारे खादी आर्टिजन्स को काम मिले, खादी का प्रोडक्शन बढ़े, खादी के यूजर्स बढ़े, और वो कंट्रीज जो वेगन हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट ही मिले जो जिनको वो चाहते हैं, उसमें खादी का फुटवेयर जो है बिल्कुल फिट इन होता है। आज देश के अंदर फुटवेयर का जो मार्केट है अराउंड 50,000 करोड़ का है, इसमें 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, और अगर हम इसमें 2% भी अगर एक साल में इसको टैप कर लेते हैं तो एक करीब 1,000 करोड़ का मार्केट हमको देंगे। और जो लॉन्च हुआ और जो उसकी पॉपुलैरिटी हुई और जिस तरीके से उसका सेल हुआ और जिसका पब्लिक का रिस्पॉन्स, मुझे पूरा यकीन है कि खादी के फुटवेयर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनमानस उसको पहन के निकले, और हमारी कोशिश होगी कि वो सस्ते से सस्ता हो और महंगे से महंगा हो। वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आप क्या कभी कल्पना कर सकती थी कि कोई महिला पटोला साड़ी को पहने हुए हो और साथ में मैचिंग पटोला सैंडल भी हो उसका? खादी ने कर दिया है। वूलन हमने पेयर्स बना दिए। जो बिहार की पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग जो इतनी फेमस है, उनके फुटवेयर। तो इन सारी चीजों को यूज करने का मतलब यह है कि हमारा जो फैब्रिक है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक ही न रुके, उसे हम और दूसरे रास्तों में भी यूज करें, उसको डाइवर्सिफाई करें। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि फुटवेयर है वो सबसे पॉपुलर बन गए। जी, आपने जो बात कही पटोला साड़ीज के साथ पटोला सैंडल्स, अपने आप में जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको अगर वो नहीं भी जानती हैं तो वो मान जाएंगी, आगे आने वाले त्योहारों के लिए उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और जैसा कि हम लगातार अपने इस खास शो में बात कर रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात के अंदर आज खादी को लेकर बहुत कुछ कहा, वहीं प्रधानमंत्री ने आज इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो पेंसिल स्लेट उद्योग है उसका भी जिक्र किया। काफ़ी छोटा उद्योग है लेकिन कैसे ये बदल रहा है वहाँ पर तस्वीर। और एक समय ऐसा था कि देश में पेंसिल के लिए जो लकड़ी थी तो विदेशों से आती थी, लेकिन अब पुलवामा का जो ये क्षेत्र है ये पेंसिल बनाने के उद्योग में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। आइए सुन लेते हैं। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है, और उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी पुलवामा की है। एक समय में हम लोग विदेशों से पेंसिल के लिए लकड़ी मंगाते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा इस क्षेत्र से देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। यहाँ पेंसिल स्लेट निर्माण की कई इकाइयां हैं जो रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, और इनमें काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े भी एक हम कह सकते हैं ये उपलब्धि है कि इस उद्योग में महिलाएं काम करती हैं। ख़ास तौर पर हम अगर ये भी मान के देखें सक्सेना साहब कि कैसे प्रीति जब हम लोकल उत्पादों की बात करते हैं तो अक्सर लोकल उत्पादों के प्रचार प्रसार से एक दर्शन जुड़ा होता है। यानी कि हम अगर मान लीजिए आपने से मधुबनी का जिक्र किया या हम बात करते हैं पंजाबी जुतियों की, तो कहीं ना कहीं हम अगर वो सामान खरीदते हैं तो वो सामान से तो प्रेम नहीं होगा खाली, बल्कि हम कहीं ना कहीं उस राज्य की तस्वीर भी अपने साथ घर लेकर जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत अहम है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो अपने आप को इससे जोड़कर देखेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो खादी कमीशन एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको रन करता है, और इस पीएमजीपी स्कीम के माध्यम से पूरे देश में छोटे छोटे से उद्योग लगाए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस पेंसिल उद्योग का जिक्र किया है, पुलवामा में पीएमजीपी के माध्यम से बहुत सारे उद्योगों को लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 300 ऐसे उद्योग लगाए गए हैं जो लोग कोई काम नहीं करते थे, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं था, वो इस स्कीम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गए। जिसमें अगर मैं कहूँ हनी उद्योग है, जो हनी मिशन है, उसमें भी अगर आप देखें जम्मू कश्मीर के कितने लोग जो हैं इस हनी मिशन से जुड़कर आज अपने बी बॉक्सेस को दूसरी जगहों पर ले जाकर माइग्रेट करके भी अर्न कर रहे हैं।
तो आज जरूरत है हमें अपने प्रोडक्ट्स को, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको वोकल करने की। जम्मू कश्मीर का हनी जो है वो बहुत मशहूर होता था, लेकिन कभी उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जबकि उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है। खादी कमीशन ने वहां पर पहुंचकर हनी मिशन को इंप्लीमेंट किया, सैकड़ों किसानों को इससे जोड़ा, और आज वहां का जो हनी है, जिसको हाई एल्टीट्यूड हनी कहा जाता है, वो कमीशन की वेबसाइट पे, जो हमारी ऑनलाइन से पोर्टल है, उस पर मिलता है। उसकी क्वालिटी, उसकी रेट्स उनको जो मिलते हैं, उससे बहुत खुश हैं वो। अपने में एक अद्भुत चेंज आया है उनके अंदर। इस तरीके की स्कीमें भी खादी कमीशन चलाता रहता है। और आज जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को वोकल करने की जरूरत है, और आपने अमेजॉन का भी जिक्र किया, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आज अगर खादी के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और खादी से बार बार मिलकर उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कारण है, एक तो ये कि खादी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, दूसरी बात, खादी ने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सजाया और संवारा है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है, जिसकी वजह से लोग अब खादी के लिए दौड़ने लगे। मैं दौड़ने वर्ड यूज कर रहा हूं। Yes. और आज ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे हजारों लोग जो हैं वो फेक खादी को बेचने का भी काम करने लगे, जिसको रोकने के लिए खादी कमीशन ने एक अपनी पूरी टीम बनाई हुई है, और जिसके माध्यम से हम लोगों को नोटिसेस देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये फेक प्रोडक्ट्स को बंद करें। जब किसी चीज का फेक प्रोडक्ट बाजार में आने लगता है, तो उसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट अपने आप सक्सेसफुल, यस, दैट प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग वेल। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेजॉन के ऊपर जो खादी के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, वो खादी के प्रोडक्ट नहीं थे। हमने उनको भी नोटिस दिया, और लगभग उन्होंने 112 प्रोडक्ट्स को जो है खादी के नाम से हटा दिया। फ्लिपकार्ट के ऊपर यही हुआ। तो आज खादी की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है कि हमने डिजाइन इंटरवेंशन किए, हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, हमने अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, और साथ में हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, और उसकी वजह से आज खादी जो है नेशनल प्रोडक्ट न होकर इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गया। Yes, you've enumerated a number of factors, a number of pointers which the administration has taken to ensure this turnaround for Khadi. But Mr. Animesh, when I'll take this point over to you now. All these efforts are bearing fruit for Khadi and for the village industries, but also a very important aspect of the results is that the results, the benefit of this reaches out to the concerned artisans, to the concerned people who are associated with this industry. What is your take on that, given we've talked of competition, we've talked of how important is social awareness regarding the products, and how the administration has intervened in making these products popular. But again, the crux of all this is how far has it made the living for the artisans or for the people who are associated with this industry better? We also saw the government had also announced a package during the Corona times for the MSME sector. So put all this together, how important is it for the artisan to be well aware of what all administration is doing for his upliftment and benefit? You see, the two things. First, for any improvement in your economic prosperity, the demand is the most important factor. The financial support and all these things comes this secondary. And with this Khadi sale going up and the Prime Minister also promoting it, a lot of artisans who are in the small scale or tiny industries have benefited a lot, because they have seen the demand growing up, especially during the festival season. So they have the work to do that. And then when the government came back very aggressively with the MSME loans, especially a collateral free guarantee loan, that was also a big advantage for the people to get the loan at a very, very attractive rate and hassle-free, and without worrying about a collateral. Because what happens when you go and borrow from the bank, the biggest challenge a small village base or a small industry faces is the arranging the collateral security.
And with this scheme coming where the government offered 20% more on this came as a big game changer. Plus Mudra scheme, which financed a small amount, 50,000 to 1 lakh rupees. And a small artisans, for them, 50,000 to 1 lakh rupees is also a big support. So these two things have really helped, especially in the Corona time crisis, where the easy availability of the money, the funds, and now demand picking up. And Khadi being basically a village-based product and cottage industry, it was immensely beneficial for the artisans and the village industry. विनय जी, जिस तरह से हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर आप खादी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश को सपोर्ट करते हैं, ये कितना अहम आप मानते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप खादी के उद्योग से जुड़े हों, अगर आप खादी खरीद भी रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश की मदद करें। ये जो भावना है इसको प्रधानमंत्री तो जागृत करते ही हैं, लेकिन किस तरह से हम मानते हैं, जैसे सोशल मीडिया का भी हमने जिक्र किया, और किस तरह से जागरूक कार्यक्रम चलाए जाते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आपको कोई स्टोर पता करना है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पर ये स्टोर मौजूद है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाधाएं थी उनको तो कम किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता किस तरह और किस लेवल तक पहुंचाई जा रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक कि किसी प्रोडक्ट को पॉपुलराइज नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या क्वालिटी है, वो कहाँ उसकी अवेलेबिलिटी है। और आज का जो जमाना है वो है ऑनलाइन सेल। खादी कमीशन ने पहले बहुत सारे प्रयास किए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लाएं और बहुत सारे जो पॉपुलराइज्ड और बड़े बड़े पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से लाएं, लेकिन समहाउ वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। और 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले खादी कमीशन ने अपना स्वयं का ई पोर्टल लॉन्च किया। और उस वक्त जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया 8 जुलाई को, तो मकसद ये था कि जो खादी का मास्क है वो देश के कोने कोने तक पहुंच जाए, जिसकी कीमत बहुत कम है, क्वालिटी वाइज बहुत सुपीरियर है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, मैं आपको बताऊं कि लोग उस पर बहुत सारे विजिट करने लगे, लोग डिमांड करने लगे कि आप और प्रोडक्ट्स को उस पर ऐड करें, और धीरे धीरे हम लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को एक फुल फ्लैज जो है प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और लगभग 600 प्लस प्रोडक्ट्स खादी के उस ई प्लेटफॉर्म से बिक रहे हैं, जो khadiindia.gov.in के नाम से जाना जाता है। और ये जो सबसे बड़ी बात उसकी ये हुई कि पोखरण में बनाने वाला एक हमारा कुम्हार जो दिए बना, उसने कभी उसकी कल्पना नहीं की होगी उसका दिया जो है जम्मू कश्मीर का कोई कस्टमर खरीदेगा, या गुवाहाटी में कोई आदमी परचेज करेगा, या महाराष्ट्र में कभी कोई परचेज करेगा। जी जी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने उस छोटे से आर्टिजन की उस क्रिएटिविटी को आज देश के कोने कोने में पहुंचा। और क्योंकि गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं, किफायत के लिहाज से जिस तरह से हमने देखा, अभी कुछ महीने पहले की बात है कि खादी को बड़ा प्रोत्साहन था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी, केवाईसी के अगर अंतर्गत देखा जाए तो करीबन 1,80,000 से ज्यादा फेस मास्क खरीदे गए। तो कितना अहम आप मानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण आप उत्पाद भी दे रहे हैं, किफायत के साथ भी मिल रहा है, रोजगार भी लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो एक खादी जो है वो पूरे करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, खादी जो है सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, एक अपने में विचार है। और खादी सिर्फ एक मकसद नहीं पूरा करता है मार्केटिंग करके प्रॉफिट अर्न करना। खादी के पीछे एक जो भावना होती है वो होती है लोगों को रोजगार देना। अब अगर खादी का मास्क बिक रहा है तो आप ये सोचिए कि इसके पीछे कितना बड़ा जो है चेन क्रिएट किया गया। खादी की स्पिनिंग हो रही है, जो धागा बना रही है महिला, उसके बाद उसकी वीविंग हो रही है, जो कपड़े बन रहे हैं, वो कपड़ा उसके बाद कलरिंग होकर हमारी संस्थाओं के पास जा रहा है जहां पर मास्क बन रहे हैं, स्टिचिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, प्रेसिंग हो रही है उसकी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हो रही है। हर स्टेज के ऊपर जो है खादी कमीशन जॉब क्रिएट कर रहा है। यही खादी की जो है सबसे बड़ी शक्ति है। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि कम कीमत पे हम जो है अपने
देशवासियों को अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके। आज खादी का जो डबल लेयर्ड मास्क है वो मात्र 30 रुपए का है, इसमें हाई क्वालिटी फैब्रिक लगा हुआ है। आप 30 रुपए में क्या कभी कोई मास्क की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। और वो भी इस वक्त गांधी जयंती पर जो डिस्काउंट चल रहे हैं तो उस पर 20% डिस्काउंट तो 24 रुपए का ही मिल रहा है। सिल्क का 3 लेयर मास्क जो है वो 100 रुपीज का है, जो इस वक्त डिस्काउंट के बाद 80 रुपीज में मिल रहा है। तो लोग उसे यूज करने के बाद अपने विचार जो हैं वो सोशल मीडिया पे देते हैं, ट्विटर से लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं और बहुत सारे ऐसे माध्यम जिस पे लिखते हैं। Yes, and this is what the Prime Minister has also said. We need to change this crisis into an opportunity, and we need to become self-reliant from these times. ये भी कहना चाहूंगा कि शायद यही रीजन है जिसकी वजह से रेड क्रॉस ने इतना बड़ा ऑर्डर हमको दिया। अगर हमारी पास क्वालिटी नहीं होती, हमारे कम्पिटिटिव रेट्स नहीं होते, तो शायद हमें कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता। रेड क्रॉस का ऑर्डर 11 लाख मास्क का है। Yes. All right, Mr. Animesh, I would want you to also elaborate more on, what are other concerns when we talk of village industries, when we talk of the MSME sector. Financial aid has been, time and again has been given to the sector, and also the administration is leaving no stone unturned for the changeover of the sector, turnaround of the sector. So I would want you to talk, elaborate more when we talk of the journey ahead for the sector, for the village industries ahead from here on. What are the, prime concerns in the road ahead? You see, the biggest prime concern, apart from the financing which we see in the village industry, that continuous flow of business to them. What happens if the order, yes, if they can be ensured that the continuous orders are available to them. Second thing, some support in their, as I earlier also said, in improving their production process, because a lot of process which they are doing is not giving them a good efficiency. So if that production process can be, there can be some technical support by the district industry centers or some sort of workshops where these people can be taught a better production technique that will improve their efficiency, and plus standardization in their quality. What happens sometimes, the quality is not consistent. Some time the production is very good, quality very good coming. Sometime due to certain issues in their production process, the quality becomes bad. So to give them a consistent quality, they need some more training now and improving their production efficiency plus maintaining their quality standards. These two things are very important. And as we are trying to go towards global also now, because you see, if we have to achieve the dream of the Prime Minister of reaching the 5 trillion economy, the domestic consumption alone will not reach us to that level. It will have to go to global also. Yes. So for global, these things are very, very important. That plus a supply chain. What happens if any village industry making some product for khadi, they are buying some raw material from elsewhere. So that supply chain should be also very efficient, because when you are going for a global, the timely delivery is also very, very important. If you are not able to fulfill their commitment, their demand as per their terms and condition order, then it's a failure. So we'll have to ensure that the supply chain is also intact and they are consistently providing a standard quality, and can have, apart from success in the domestic and global. जी सक्सेना साहब, विनय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर चैलेंजेस को लेकर बात की, लेकिन अब हम दायरा कैसे और बढ़ाएंगे? जैसे कि मैं आप ही के बारे में पढ़ रही थी, रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि अब खाकी जो कभी नेताओं की पहचान होती थी, आज युवा पहनते हैं, और स्कूल्स में इसको प्रायोगिक तौर पर यूनिफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है, बहुत संक्षिप्त में, कि आगे अब दायरा क्या है खादी का? कौन कौन से ऐसे और क्षेत्र हैं जिनको अपने अंतर्गत समा लेना चाहती है खादी? देखिए, दायरा तो बहुत बड़ा है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जन जन तक पहुंचाएं। गुजरात का अगर मैं जिक्र करूं तो गुजरात में वहां के जो टीचर्स हैं वो मंगलवार के दिन सिर्फ खादी ही पहनते हैं। आप इसका एक मैसेज देखिए कि कितना बड़ा जाता है कि पूरे लाखों टीचर्स एक दिन सिर्फ खादी पहनते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में खादी ने अप्रोच करके
से कहा कि आप खादी को अपनाएं। आज मैं नाम अगर लेने के लिए जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ खादी को ही प्रमोट करती है। आज उनके जो फंक्शंस होते हैं उसमें खादी ही पहनी जाती है। इसकी वजह से भी खादी का आज जो है चलन बढ़ा है और खादी का सेल भी बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जिनको हमने अप्रोच की कि आपके जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, आप उनको ड्रेस जो है खादी की दीजिए। तो उसका कारण था कि अगर आप उनको सिंथेटिक ड्रेस देते हैं तो वो धूप में अगर काम करते हैं तो उनकी स्किन को प्रॉब्लम होती है, उनको तकलीफ होती है। अगर खादी का कपड़ा वो पहनेंगे तो वो धूप में काम कर सकते हैं। और वास्तव में बहुत सारी ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे जिन्होंने हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और लाखों मीटर कपड़ा जो है इस तरीके से यूनिफॉर्म बनाने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को पे लगा। आज पोस्ट ऑफिस को देख लीजिए, लगभग 90,000 पोस्टमैन एंड पोस्टवुमेन हैं हमारे देश के अंदर। हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से एग्रीमेंट किया और उनसे कहा कि आप इसको अपनाएं, क्योंकि हमारा एक पोस्टमैन और पोस्टवुमेन जो है वो धूप में घूमता है, उसे भी कंफर्ट की जरूरत है। और इस सरकार ने ही उसको एक्सेप्ट किया और वो सारे के सारे यूनिफॉर्म जो है खादी कमीशन बना रहा है और उनको दे रहा है। इस तरीके से लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों मीटर कपड़ा इन यूनिफॉर्म्स के अंदर लगा और उनको एक एनआईडी द्वारा डिजाइन की हुई प्रॉपर यूनिफॉर्म मिली। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कोई कुछ भी पहन के निकल जाता था। आज एक प्रॉपर डिजाइन होती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम करने की वजह से खादी कमीशन की रीच बढ़ी है। दूसरी बात, आपने देखा होगा हर साल बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे पीएसयूज होते हैं जो अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट देते हैं। खादी कमीशन ने उनसे अप्रोच की कि आप उन्हें खादी के गिफ्ट कूपन्स दीजिए जिससे कि वो खादी खरीदें। बिल्कुल। और वास्तव में इसमें बहुत सफलता हमें मिली और शायद मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसने 3 साल के अंदर 119 करोड़ के गिफ्ट कूपन्स को बेचा। This is what has been emphasized by the Prime Minister as well, that how can we be successful globally until and unless we accept and we promote and endorse the locally made products, the local industries, and that is what is required. Thank you so much both of you, Mr. Animesh and Mr. Vinay, for joining us and sharing your insights on Atmanirbhar Bharat. So that was it when we talk of Prime Minister's clarion call again for promoting vocal for local. This is what the Prime Minister said, and he quoted the example of Khadi, and he said what a long and impressive journey Khadi has made till now, from being associated pre-independence era to now. It has come a long way, and this is what the Prime Minister also said, that it is we, the people of the country, we need to promote the locally made goods so that we excel and we succeed on the global page as well. बिल्कुल, और यही वैश्विक पटल पर जो पहचान अंकित होगी भारत की, खास तौर पर इसको लेकर कि कैसे हम मानते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि जो घरेलू स्तर पर सामान बनाया जा रहा है उसकी पहचान वैश्विक स्तर पर भी हो रही है। इसमें हमारा बहुत अहम रोल है। लेकिन आज के इस शो में बस इतना ही। लगातार हम आपसे आह्वान यही करते आ रहे हैं कि आप हमारे मास्क अप इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनिए। कहीं भी जाएं, आप जानते हैं आज दशहरा है, आगे भी त्यौहार आने वाले हैं, तो कृपया मास्क पहनकर बाहर निकले। और सबसे अहम है, सबसे किफ़ायती और असरदार तरीका है कोरोना से खुद को बचाने का और जो हमारे साथ हैं उन्हें बचाने का भी। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे मुद्दे के साथ, जहां पर हम आत्मनिर्भरता के इस मंत्र के साथ बढ़ेंगे आगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।